नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के पास। इमरजेंसी है और अभी फ़िलहाल हमारे देश में एक इमरजेंसी सिचुएशन है। आप सभी जानते हैं कोविड का वेव चल रहा है और इस वक्त जिस तरीके से हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स के रूप में, पुलिस के रूप में, नर्स के रूप में, अलग अलग रूप में हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस बीच में मैं आपके एक ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। एक समस्या के साथ जुड़ा हूँ और समस्या कोविड के समय में सिर्फ प्रशासन ही नहीं, पुलिस ही नहीं, सफाई कर्मी ही नहीं, नर्स ही नहीं, बल्कि एक और योद्धा है जो बड़े रिस्क के साथ अपनी काम करता है। और उन योद्धाओं के साथ कितने प्रशासन खड़े हैं, कितने उनकी सुविधाएं मिल रही है और उनके जो दास्तां हैं वो कौन बताएगा और कैसे उनके लिए आगे की जो बातें हैं वो लोग देख पाएंगे या उनके बारे में सोच पाएंगे। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी में सबसे पहले सुविधा देने वाला इंसान एम्बुलेंस चालक। और एम्बुलेंस चालक हमेशा किस कठिन परिस्थिति के साथ काम करता है और क्या क्या दिक्कतें फ़िलहाल इस पेंडेमिक सिचुएशन में आई है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे और क्या सिचुएशन के साथ वो यहाँ पर जुड़े हैं और काम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर फ़िलहाल हम बताएंगे कि एम्बुलेंस जो है उनके यहाँ पे एसोसिएशन के कई सारे लोग मौजूद हैं जो लगातार मरीजों के साथ दौड़ भाग कर रहे हैं, उनके परिजनों के साथ दौड़ भाग कर रहे हैं। हंसते हुए परिजन के साथ भी उनकी मुलाकात होती है और रोते हुए परिजन के साथ भी उनकी मुलाकात होती है। इनका भी परिवार होता है, इनकी भी जिम्मेदारी है किन सुविधाओं के साथ वो काम कर रहे हैं और किन सुविधाओं के साथ उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए, इनके बारे में जानते हैं। दादा की नाम आपना? आसिफ खान। आसिफ खान। अच्छा दादा, एम्बुलेंस এই সময় সবচেয়ে महत्वपूर्ण चीज़ আছে আর সেটাই একটা সুবিধা আছে যে পেশেন্টকে বাড়ি থেকে তুলে ডাইরেক্ট হসপিটাল বা যেখানে ওর ইলাজ হবে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সময় আপনি জানেন, আপনার জানা আছে যখন আপনাকে ফোন আসে আপনি জানতে পারেন কি আমার পেশেন্টের কোভিড হয়েছে, তখন কি ভাবেন আপনারা? কি মানে একটা মোটিভ নিয়ে কি সোচ নিয়ে আপনার বাড়িতে যান আর পেশেন্টকে তুলেন? দেখেন, আমাদের তো এটা সেবা মানে কাজ, এটা আমাদের। আর করোনা হয়েছে, এটা তো সব দেশের একটা আকবা ফেলে আছে এটা। আর করোনা এটা একটা মানে মারাত্মক একটা রোগ, তো আমাকে যেতেই হবে, এটা আমার কাজ এটা। তো যাই, আমরা মনে তো ভয় লাগে, বাকি কাজ এটা আমাকে করতেই হবে। কাজ এক নম্বর কাজ, 2 নম্বর দেশ সেবা, হ্যাঁ দুটোই করছি। বাকি আমাদের এই কাজ করতে গিয়ে অনেকগুলো সমস্যার সামনা হতে হচ্ছে। যেমন গাড়িতে একটা অক্সিজেন আছে, আমাদের অক্সিজেন তো পাওয়া যাচ্ছে না, তবু আমরা কোনো রকম করে অক্সিজেনটা ম্যানেজ করছি। তো একটা পেশেন্ট নিয়ে যেমন মেডিকেল থেকে কোনো নার্সিংহোমে যাচ্ছি, নার্সিংহোমে যাওয়ার পরে নার্সিংহোমে সিট নাই, ওখান থেকে অন্য নার্সিংহোমে যাচ্ছি, নার্সিংহোম এক নার্সিংহোম থেকে আরেক নার্সিংহোম, এরকম ঘুরতে ঘুরতে অক্সিজেন শেষ হয়ে মানে একটা টাইম লাগে, সেই টাইম লিমিটে অক্সিজেনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, অক্সিজেনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কি করে করেন আপনারা? এরকম মানে অনেক কষ্ট ফেস হতে হচ্ছে আমাদেরকে, অনেক অসুবিধা। যদি আপনি চান কি আপনার যে অক্সিজেন যে আপনি সিলিন্ডার আছে সেটা একটু বাড়ানো যায়? আচ্ছা, মানে আমাদের তো পরিষেবাই পাওয়া যাচ্ছে, অক্সিজেনের পরিষেবাটাই পাওয়া যাচ্ছে না, অনেক কষ্টে। যেখানে আমরা যাচ্ছি 2 দিন 3 দিন পর, মানে এরকমই হতে হবে কি যখন পেশেন্ট বলছে আপনার কাছে অ্যাম্বুলেন্স সে এক্সট্রা সিলিন্ডার আছে কি না, যদি এক্সট্রা নাই তাহলে অ্যাম্বুলেন্সটাও ভাড়া নিচ্ছে? হ্যাঁ, ভাড়া তো যাচ্ছে না, অসুবিধা হচ্ছে অনেক। আর পেশেন্ট পার্টি বলে অ্যাম্বুলেন্স আছে তো অক্সিজেন অবশ্যই হবে, তো অক্সিজেন তো আমাদের বাড়িতে তৈরি হয় না। কিন্তু একটা আছে, এখন তো একটা দিয়ে হবে না, 2-3টা মনে হয় লাগে আপনার? হ্যাঁ, 2-3টা অক্সিজেন লেগে যায়। আচ্ছা, যখন আপনারা পেশেন্টকে নিয়ে যান আর পেশেন্টকে বাড়ি থেকে কালেক্ট করে বা নার্সিংহোম ঘুমে, আর ওই সময় যদি কী অসুবিধা হয়, কেন না অ্যাম্বুলেন্স নেওয়ার তো কোনো লিমিট থাকে না, আপনি কত কিলোমিটারও যেতে পারেন, তাই না? তো ওই সময় কী অসুবিধা হয় আপনার ডিউরিং রাস্তায়? রাস্তায় তো প্রথম নাম্বার, যদি আমার গাড়ি রাস্তায় যদি খারাপ হয়, কোনো মিস্ত্রি পাওয়া যায় না। যদি গাড়ি পাংচার হয়ে যায়, কেউ আমার গাড়িতে অ্যাম্বুলেন্সে হাত লাগাতে চায় না। রাস্তায় যদি মনে করেন এখান থেকে 100 কিলোমিটার রাস্তায় গেলাম, তো খাওয়ার রাস্তায় কোনো হোটেল কোনো কিছু খোলা থাকে না, যদি খোলা থাকে আমাদের খাবার দেয় না। অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার বলে আমাদের সবাই ঘৃণা করে, মানে আপনাদের দিয়ে ভয় পায়, আমাদের ভয় পায়, ঘৃণা করে এক নম্বর, যে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার আসছে যে আমাকে করোনা না ধরে নেয়, আগে সাইড হয়ে যায়, ভয় পায় না। अच्छा, आप जेरकम देखें अपना तो ड्राइवर है, आप लोग एक ड्राइवर है, एम्बुलेंस ड्राइवर, ऐसे में जब आप पेशेंट को लेते हैं तो आपको संक्रमित होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो है ही है। तो कितना सेफ्टी लेके चलते हैं आप लोग? पीपी किट पड़ रहा है और वो सैनिटाइजर वगैरह है। अच्छा,
उसके बावजूद भी अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपको 14 दिन के या 10 दिन के लिए आइसोलेट होना होता है, तो उस समय आप गाड़ी नहीं चला पाते तो आपका आय का स्रोत बंद हो जाता है, तो उस वक्त कैसे आप अपने परिवार को चलाते हैं? परिवार चलाने का कोई व्यवस्था नहीं है, सब मतलब प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। मतलब अपने आप गुजारा करना पड़ता है। और अगर इस बीच में अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आप संक्रमित हो जाते हैं और आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार तक प्रशासन या बाकी लोग कैसे खड़े होंगे? तो प्रशासन की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से मतलब खड़े होना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, बाकी वो कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग एक एसोसिएशन में हैं, यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था इस सब चीज़ों के लिए लिया गया है? अभी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है अभी। इस पर तो विचार करना पड़ेगा। विचार तो करना पड़ेगा, रिस्क कभी भी फैक्टर हो तो सकता है। विचार ही हम तो ये चाहते हैं जो एम्बुलेंस ड्राइवर कोई बीमार पड़े, कोई होम क्वारंटाइन हो जाए तो उसका खर्चा वर्चा की व्यवस्था, बहुत से ऐसे हैं जो उसका गाड़ी के ऊपर से उसका संसार चलता है। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत से ऐसे। बाकी तो हम ये चाहते हैं, आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे हमारे? हम तो ये अनुरोध करना चाहते हैं प्रशासन से, हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं जो एम्बुलेंस ड्राइवर को जो कोई मुसीबत आए, उनका कोई बीमार पड़ जाए तो उनका कोई अच्छा हेल्प का व्यवस्था करे, उसका घर संसार का कोई खर्चा का उसका चल सके ठीक से। तो हमारे साथ एक एम्बुलेंस चालक की बात हुई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्या होता है पेशेंट को लेके जाने वक्त और इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है। हमारे साथ यहाँ पे और एक युवा एम्बुलेंस चालक है जो कि बागडोगरा में रहने वाले हैं, काफ़ी चर्चित हैं, खुदूस जी नाम है इनका, MD। तो इनसे बात करें। अब मुझे ये बताइए कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम देखा इस बीच में पेशेंट को घर से उठाकर मेडिकल तक या अलग नर्सिंग होम तक ले जाते समय क्या क्या दिक्कतों का सामना जो पेशेंट के परिवार है उनको करना पड़ता है और आपको करना पड़ता है? देखिए, एक्चुअली मैं तो पहले बोलूँगा खबर सर को मेरी तरफ से पहले नमस्कार। उसके बाद में बहुत देखा हूँ इस समय कि मेरा आँख के सामने आदमी मरते हुए। ठीक है, कोई पेशेंट पार्टी ये चाहता है कि भैया चलिए मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है या पेशेंट का ऑक्सीजन चाहिए। जब मैं जाता हूँ तो मतलब जाने से पहले ही उन लोग बोल देते हैं भैया पेशेंट नहीं है। इससे दुख लगता है बहुत कि अपना आँख का सामने देखता हूँ अब मरा हुआ, इतना मतलब सिचुएशन अभी खराब है, मतलब मजबूरी वगैरह बचा नहीं है, हाँ बचा नहीं जाता है, इसमें बहुत दुख लगता है। ठीक है, और क्या बोलेंगे। और गाड़ी को लेकर आप जब निकलते हैं तो उस समय क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है? अब दिक्कत तो होता है सबको, जैसे कि अभी देखिए एक्चुअली अभी लॉकडाउन के टाइम है, उसके बाद मिस्त्री वो जो गैरेज है वो बंद है। अभी गाड़ी का बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि पेशेंट का तो हम लोग को तो सेवा देना करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा करना वो तो धर्म है अलग। ठीक है, ऐसा बोला जाता है बहुत जगह पे कि एम्बुलेंस अभी मनमाना भाड़ा वसूलता है, अपना एक बड़ा पैसा बोलता है, बहुत लोग गरीब है वो एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस पर क्या बोलना है वहाँ पर? देखिए ये फिर ठीक नहीं है, क्योंकि एक धर्म भी होता है। अब हम देखिए वो कोई मजबूरी पड़ गया, अब उसका कोरोना हो गया, हम उसके लिए हम मांगेंगे 20,000 25,000, ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, एक्चुअली नहीं करना चाहिए। ईमान भी है अपना धर्म भी है, जान बचाना भी फर्ज है किसी का। फिलहाल अगर एम्बुलेंस की अगर बात करें कि अगर बागडोगरा या सिलीगुड़ी आसपास से अगर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में लाना हो तो भाड़ा भी क्या किस तरह का चल रहा है? देखिए, मैं जैसे मेरा भाड़ा है, जैसे कि मेरा वो हॉस्पिटल गाड़ी है, ठीक है, मैं वहाँ से यहाँ लाने के लिए 500 रुपये लेता हूँ ऑक्सीजन लाने के लिए, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। और हम लोग का अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग को हेल्प करना कोई नहीं है। पहले क्या भाड़ा था? पहले 400 रुपये था मेरा रेट, क्योंकि मेडिकल का अलग रेट है, मेरा अलग रेट है। ठीक है, तो मैं बढ़ा एक्चुअली, क्योंकि ऊपर से तेल का दाम भी बढ़ा। शिकायत आ रहा था कि कई सारे शिकायत आ रहा था कि 10,000 से 15,000 तक भी किराया वसूला जाता है बहुत कम दूरी में। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है हम लोग का, यहाँ भी नहीं हुआ है, मेरा वहाँ भी नहीं हुआ है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब कौन करता है ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। एक्चुअली आदमी का मौका का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी कोई मजबूरी है, मजबूरी में वो क्या करता है कि मेरा जान बचाने के लिए हम पैसा डाल दें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ जुड़े, आप लोगों की बातों को हमने दादा আমি একটা জিনিস জানতে চাই, আমি एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि फ़िलहाल अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जानना चाहते हैं वो लोग कि एक्चुअल में एम्बुलेंस की भाड़ा का क्या सिस्टम है, क्या भाड़ा होना चाहिए। अगर कोई सिलीगुड़ी या माटीगरा नक्सलबाड़ी पाइनटंगी के आसपास से आता है तो किस तरह का भाड़ा होना चाहिए ताकि लोगों को जानकारी में हो, कोई भी एम्बुलेंस उन्हें बेवकूफ़ ना पाए, उनके मजबूरी का फ़ायदा ना उठा पाए। क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, तो आज से जब कोरोना फर्स्ट चालू हुआ था उस टाइम MBI ऑफिस से हमारे भाड़ा फिक्स कर दिया था। 600 रुपये भाड़ा है गाड़ी भाड़ा, ऑक्सीजन का 300 रुपया और PVDS का 1000 रुपया। ठीक है, ऐसे सिस्टम कर दिया था। उस टाइम तेल का दाम भी कम था, अभी तेल का दाम हो गया 93 हो गया तेल लीटर। ठीक है,
अभी उसी हिसाब से, बाकी इतनी हाई फाई भाड़ा नहीं है, 1-200 रुपये का डिफरेंस हो जाता है। मतलब पहले के भाड़े में थोड़ा बहुत 200-300-400 रुपये का हाँ, मैक्सिमम फर्क पड़ेगा। मैक्सिमम का फर्क तो पहले होगा। के भाड़े से कंपेयर करके लोग सुविधा ले सकते हैं। अगर हाँ कोई- जी। अगर बहुत ज़्यादा मांगता ऐसा बोलता है कि तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? ज़्यादा हो गया तो वही 1500 से 2000 का अंदर हो गया, अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया। हाँ जी, अगर कोई बोले 20,000 30,000 वो फालतू बात है, कोई फालतू बात है। ये 10,000 20,000 वाली कोई बात नहीं है। जो गाड़ी लेगा 20,000 30,000 नंबर पर ले लेना, उसका बिल भी ले लेना। अगर कोई 10-20 हज़ार रुपये भाड़ा लिया, उसका नंबर नोट करिए, नंबर नोट करके उसके बाद प्रोसेशन है। हाँ, तो- देश का नियम कानून तो है ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा एम्बुलेंस चालक के जो चालक है उनसे बातें हुई, क्या कुछ वो दुख तकलीफ देखते हैं, उनके अंदर भी एक दिल होता है, उनका भी इंसानियत होता है। वो जानते हैं कि परिवार किस स्थिति में रहता है, उस वक्त किस स्थिति के साथ वो मेडिकल या नर्सिंग होम में पहुंचता है और वहां पर इलाज के लिए तैयारियां करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बातें थी, अब आप सभी को जानकारी मिली थी कि मन माना किराया जो एम्बुलेंस चालक है वो लेते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एकदम सफिशेंट भाड़ा लेते हैं। कोरोना का समय है और थोड़ी सी अगर होता तो 100-200 हम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं लेते हैं। और समस्या की अगर हम बात करें एम्बुलेंस चालकों की जो हो रही है, वो हो रही है उनकी जो किट्स है, उनको प्रॉपर किट्स अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक दिक्कत उन्हें संक्रमित होने का लगता है। अगर वो संक्रमित हो जाते हैं तो उनको अगर आइसोलेट या बाकी चीज़ किया जाता है, उसके लिए कोई सुविधा जो प्रशासन या बाकी आसपास के जो समाजसेवी संगठन हैं उन्हें कर देना चाहिए। तीसरी और चौथी समस्या ये आ रही है कि जब गाड़ी ख़राब हो जाता है, आप जानते हैं गाड़ी कैसी चीज़ है, मैकेनिकल चीज़ है, कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकती है, उसकी जो स्टेपनी होती है, टायर पंचर हो सकता है। तो इस तरह की समस्या जो है वो गाड़ी में रहता है। लंबा समय की जो दूरी है वो भी तय करनी पड़ती है, पेशेंट को लेकर कहीं से कहीं भी जाया जा सकता है। उस वक्त अगर गाड़ी ख़राब हो जाता है तो गैरेज की समस्या के कारण उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी बात सामने आता है कि जब उन्हें पता चलता है गैरेज वालों को कि ये एम्बुलेंस है या इसमें कोरोना संक्रमित बॉडी हो सकती थी या पेशेंट हो सकते थे, तो वो पूरी तरीके से एम्बुलेंस को सर्विस देने से थोड़ा डिनाई करते हैं। उन्हें होटल या बाकी जगहों पर जब एम्बुलेंस की चालक है या एम्बुलेंस चलाता है ऐसा जानकारी मिलती है तो उन्हें वो खाना भी नहीं बैठ के खाने देते या उन्हें खाना की सुविधा नहीं देते। तो बहुत तरह की जो रास्ते में जो समस्या है वो एम्बुलेंस चालक को है और ऐसी समस्याओं को लेकर उन्होंने अपनी छोटी सी बात रखी। हमने एक पहल की थी, हमने एक जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की थी कि एम्बुलेंस चालक जो सबसे पहले इमरजेंसी सर्विस में पेशेंट को घर से उठाकर हॉस्पिटल, मेडिकल या फिर नर्सिंग होम में ले जाते हैं तो क्या सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये एक सोचने वाला विषय था, हमने इस बातों को आपके सामने रखा है। उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ अच्छी सुविधा मिले ताकि वो और भी अपनी समाज और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बड़े ज़ोर से आगे बढ़े और लोगों की मदद करे और हमारे और आपके घर में जो लोग भी बीमार या संक्रमित होते हैं उन्हें समय पर पहुंचकर बचने का मौका मिले। बस यही चीज़ था जो आप सभी के साथ हम जुड़कर करना चाहते थे। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।